Hello everyone, welcome to Quantifiers. So in this session, we will discuss the topic of input and output, which is there in the exams like NMAT, SNAP and CMAT, etc. So let us start the session. Now, in the topic of input and output, let us first of all discuss the structure of the exam, structure of the question. Now, in the questions of input output, you will be given, first of all, some direction will be there that a word rearrangement machine is there. When you supply some input to it, it rearranges the words in some specific order, and then you will be given an example, right? So you have to follow the example, and after that you will be given some other input in the form of a question, and you have to rearrange the words of that input again as per the pattern of the example. Now, जब हम input की बात करेंगे, यहाँ पे input could be of different types. So whatever is given to you in the input, that could be of different types. वो आपको एक sentence दिया जा सकता है, जिसमें जो words है sentence के you have to rearrange them. Now, जब sentence दिया जाएगा, it is not necessary that the sentence is a meaningful sentence. It could be meaningful or non-meaningful also. It could be meaningful or non-meaningful sentence can also be there. So ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब आपको input में sentence दिया जाएगा, that would be a meaningful sentence. Second input could be in the form of numbers. आपको कुछ numbers दे दिए, 5, 6, 7 numbers दे दिए. और third is where you have words and numbers both. ठीक है, words and numbers both आपको दिए जाएंगे. इसमें ऐसा नहीं है कि words जो हैं they are forming a particular sentence. नहीं, words could be any random words. ठीक है, अगर structure की बात करें अब इसमें हम, so structure wise question किस तरह से आएगा? First of all, you will be given some input. अब input might be a sentence. Let's say कोई sentence आपको दे दिया. After that, examiner will rewrite the sentences by just changing the order of the words in that sentence. ठीक है, अब वो जो order change करेगा, वो किसी particular pattern के हिसाब से करेगा. So he will write down first step number 1. अब step 1 में आपको कुछ भी किया होगा, let's say ये वाला word उठा के पहले नंबर पे लिख दिया. I will take an example later on. ठीक है, और step 1 लिख दिया, then step 2 लिख दिया उसने. ठीक है, उसमें step 2 में फिर से कुछ word यहाँ से उठाया और शुरू में रख दिया, और step 3 इसमें कुछ अरेंजमेंट करी होगी. So इस तरह से करके वो आपको स्टेप में आपको अरेंजमेंट्स करके देगा और फाइनली लिख देगा वो. नाउ इट्स नॉट नेसेसरी दैट द अरेंजमेंट विल एंड इन द 4 स्टेप्स ओनली. अरेंजमेंट माइट एंड इन 4 स्टेप्स, 5 स्टेप, 6 स्टेप, किसी भी कितने भी नंबर ऑफ स्टेप पे आपकी अरेंजमेंट एंड कर सकती है. दैट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट इटसेल्फ, and he will write down that okay, this is the last step, right? Just in this example I am saying that step 4 is the last step. तो इस तरह से आपको क्या होगा, एक एग्जांपल दी जाएगी. ठीक है, आपको एग्जांपल दी जाएगी and you have to read that example. This is the example that he will give you. आपको इस एग्जांपल को स्टडी करना होता है और चेक करना होता है कि किस तरह से अरेंजमेंट्स करी गई हैं. आफ्टर दैट he will give you a question, and in that question again a different input will be given to you. A different input will be given to you, and you have to rearrange the words of this input again in the same pattern as discussed in the example. तो आपको example को follow करके फिर से input के जो words हैं, जो भी यहाँ पे दे रखा है input में, उसको rearrange करना है. Now एक चीज और है, again अगर मान लो example आपकी 4 step में खत्म होती है, it does not mean that कि input जो आपको question में दी गई है उसके भी 4 step बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. Number of steps will be different for different types of inputs. तो हो सकता है जो पहले आपको example दी है उसमें मान लो 4 step बन रहे हैं आपके पास, और जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें जब आप उसको अरेंज कर रहे हो तो पॉसिबल है कि वहां पे 5 स्टेप भी बन सकते हैं. ठीक है, 5 स्टेप के बाद अरेंजमेंट खत्म हो सकती है, या 6 स्टेप के बाद भी अरेंजमेंट खत्म हो सकती है. इट कुड बी एनी नंबर. मैं ये नहीं कह रहा 6 पे होगी, इट कुड बी 7, 8, 9 एंड सो ऑन. राइट, अब क्या सोच के एग्जामिनर बोलता है कि ओके दिस इज द लास्ट स्टेप? कुछ ना कुछ तो होगा ना जहां पे वो बोलेगा कि दिस इज द लास्ट स्टेप.
देखो होता क्या है, अगर मैं पहली टाइप की बात करूं सेंटेंस वाली, तो सेंटेंस में क्या होता है आपके पास, अगर कोई सेंटेंस दिया है और लेट्स से सिंपल वर्ड्स दिए हैं आपको, ठीक है, हो सकता है सेंटेंस दिया हो या हो सकता है एक सिंपल वर्ड्स आपको 5-6 वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स लिख के दे दिए। ऐसे केसेस में यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी है कि अरेंजमेंट में क्या हुआ है और कैसे हुआ है, हाउ द अरेंजमेंट हैज बीन डन एंड व्हाट हैज बीन डन। ठीक है, व्हाट हैज बीन डन क्या हुआ है वो आपको लास्ट स्टेप बताएगा, तो आपने कुछ नहीं करना, आपको बीच वाले स्टेप देखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट वे आप क्या करोगे, आप लास्ट स्टेप पे आओगे, यू विल सी द लास्ट स्टेप कि लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है हमें सिर्फ वो देखना है। अब लास्ट स्टेप में क्या क्या हो सकता है, कैसे अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, कहां पे अरेंजमेंट खत्म हो सकती है। हो सकता है द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट वर्ड्स आर अरेंज्ड in the increasing order, words are arranged in the increasing order as per first alphabet of every word। ठीक है, words are increasing in words are arranged in increasing order as per the first alphabet। और क्या हो सकता है, words can be arranged in the decreasing order also, decreasing order again as per first alphabet। third, they might be in the increasing order, or I should write both the steps here, they might be in the increasing or decreasing order, they might be in the increasing or decreasing order as per the last step of the last alphabet, as per the last alphabet of the words। ठीक है, तो जो वर्ड्स हैं उनको या इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जा सकता है एज पर द फर्स्ट अल्फाबेट या फिर लास्ट अल्फाबेट पे। और फोर्थ इसमें आता है वर्ड्स माइट बी अरेंज्ड एज पर द नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड के हो सकता है जो पहला वर्ड है वो 3 लेटर का है, अगला वर्ड 4 लेटर्स का है, अगला वर्ड 5 लेटर्स का एंड सो ऑन। बट इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है ना, दैट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, तो इसलिए एग्जामिनर इसको स्किप करता है। बहुत रेयरली मिलेगा आपको नंबर ऑफ लेटर्स के ऊपर, क्योंकि आप स्टेप 4 को जस्ट जो भी आपका लास्ट स्टेप होगा उसमें डायरेक्टली देख के बोल सकते हो, क्योंकि वर्ड्स में जो लेटर्स हैं दे आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब उनमें नंबर ऑफ लेटर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं वो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो। राइट, सो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो भी इनपुट दे रखी है उसमें आपको फर्दर स्टेप दिए जाएंगे, एग्जाम्पल दिए जाएगी, आपको उस एग्जाम्पल को स्टडी करना है कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, और स्टेप अगर लास्ट स्टेप जो भी दे रखा है लास्ट स्टेप, वो लास्ट स्टेप क्यों है। ठीक है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इनमें से, कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया कि क्या किया है ना, कैसे किया है, कैसे अरेंजमेंट की है। अरेंजमेंट जो करी होगी दैट वुड बी ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट होती है 2 तरह की होती है, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। अरेंजमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स, आइदर द डिस्प्लेसमेंट of the words, second is the swapping of the words। now these are very easy to identify। ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है कि आपको डिस्प्लेसमेंट करके दी है या स्वैपिंग करके दी है। ठीक है, now in order to understand this whole discussion that we have done here, let us take an example। मान लो कि हमें कोई इनपुट दी गई है, remember questions are not difficult, right? Questions they are not difficult, the only thing is that they are lengthy। in fact डिफिकल्ट नहीं होते बट थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, बट नॉट द डिफिकल्ट वंस। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक एन इनपुट, और लेट्स से इनपुट हमें दी गई है
input is say Rajan is preparing for exam. This is the input. ठीक है. Now step 1. Let me write down the steps first. फिर हम डिस्कस करते हैं इसको कि कैसे ये अरेंजमेंट बन रहा है. Step 3. Step 4. Now, this is the last step. I would write that, okay, step 4 is the last step for this arrangement. ठीक है, तो जो मैंने इनपुट रखी थी उसमें step 4 is the last step. अब ये लास्ट स्टेप क्यों बना ना? अगर मैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पैटर्न डिस्कस किए हैं, अगर इनमें से मैं देखूं, इफ आई लुक एट द पैटर्न्स हियर, यू कैन इजीली चेक दैट कि अगर लास्ट आप स्टेप देखोगे, देखो व्हाट हैज बीन डन, क्या किया हुआ है, ये देखने के लिए आपको लास्ट स्टेप पे जाना है हमेशा. आप बीच वाले स्टेप नहीं देखोगे, आप डायरेक्टली पहला आपका जो काम होगा आप लास्ट स्टेप देखोगे कि लास्ट स्टेप जो भी दे रखा है, वेदर इट इज द स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, जो भी लास्ट स्टेप है उसमें करा क्या है. ठीक है, आप ये देखोगे. सो इनपुट वाज राजन इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम. सो अगर आप स्टेप नंबर 4 देखते हो तो यू विल फाइंड दैट the words are arranged. Now it is, the first word is starting with E letter, the second is starting with F, third is starting with I, fourth with P, and the last one with R. So you can see that E, F, I, P and R, right, they are in the increasing order. So that means यहाँ पे जो मैंने arrangement करी है, मैंने क्या किया है, I have arranged the words of the original input as per in the increasing order as per the first alphabet of the words. ठीक है, तो पहला तो हमारे पास यहाँ पे हमें ये समझ आ गया कि हमने क्या किया है, राइट. तो हमने वर्ड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है एज पर देयर फर्स्ट अल्फाबेट. अब ये उल्टा भी हो सकता था, हम इसको लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते थे. ठीक है, तो वो चीज आपको लास्ट स्टेप में दिख जाएगी कि क्या किया हुआ है. अब कैसे किया है, हाउ दिस हैज बीन डन, हाउ दिस अरेंजमेंट हैज बीन मेड, हमें वो देखना है. नाउ देयर आर टू वेज, वन इज द डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज द स्वैपिंग. और ये बहुत इजी देखना, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना. आप एक चीज देखो, स्वैपिंग का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आपने रिक्वायर्ड वर्ड को उसकी पोजीशन पे रखा और बाकी सारा डिस्प्लेस कर दिया टुवर्ड्स द राइट, जैसे यहाँ पे किया आपने ना. अब क्या देखते हो, इनपुट में क्या था, द वर्ड, मुझे पता है कि मुझे अब वर्ड्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाना है एज पर देयर फर्स्ट अल्फाबेट्स. ठीक है, तो मुझे दिख रहा है राजन इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम में एग्जाम जो है इसमें ई आ रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ई से जो ये वर्ड बन रहा है इट शुड बी इन द फर्स्ट पोजीशन. तो मैंने क्या किया, इस एग्जाम को उठा के फर्स्ट पोजीशन पे रखा और बाकी सबको एक एक स्टेप राइट में डिस्प्लेस कर दिया. राइट, राजन इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज वर्ड्स, दे गॉट डिस्प्लेस्ड वन स्टेप टुवर्ड्स द राइट. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. फिर मैं, मुझे पता है उसके बाद के एग्जाम ई के बाद मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे मुझे एफ दिख रहा है लेटर, इट शुड बी एफ आफ्टर ई. तो मैंने यहाँ से अब स्टेप 1 में जो भी अरेंजमेंट थी वहां से मैंने 4 उठाया, उस 4 को मैंने सेकंड पोजीशन पे रखा, तो मुझे पता है कि फाइनली क्या करना है. ठीक है, और बाकी सबको हमने एक एक स्टेप और राइट में डिस्प्लेस कर दिया. ना आफ्टर ई एंड एफ जब हमने ये दोनों कर दिए, मुझे पता है बाकी जो आर, आई और पी बचते हैं इनमें से आई पहले आएगा. सो मैंने आई को यहाँ से फोर्थ पोजीशन से उठा के थर्ड पे रखा और इनको एक एक स्टेप और डिस्प्लेस कर दिया टुवर्ड्स द राइट. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट जहां पे हमने इनको डिस्प्लेस किया है. अगर स्वैपिंग होती तो वो भी इजी था आइडेंटिफाई करना. देखो
ये चीज आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है कि आपने डिस्प्लेसमेंट करी है या स्वैपिंग करी है। स्वैपिंग में क्या होगा, आपको इनपुट दे रखी है, आपको पता है एग्जाम आपका पहली पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, तो एग्जाम आपका पहली पोजीशन पे जाएगा, एग्जाम जो वर्ड है ये इट वुड बी इन द फर्स्ट पोजीशन, तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसको फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाओगे और जो भी वर्ड फर्स्ट पोजीशन पे था उसको इसकी जगह पे लेके आ जाओगे। सो दिस इज स्वैपिंग, ठीक है। तो एग्जाम इज प्रिपेयरिंग फॉर राजन, ठीक है, ये मेरे पास पहला स्टेप बन गया। देखो आपको क्या करना है, ये आपको एग्जाम्पल देख के समझ आएगा। एग्जामिनर ने क्या किया, ये आपको नहीं करना है, ये एग्जामिनर ने किया होगा। आपको एक एग्जाम्पल दी होगी एग्जामिनर ने, उस एग्जाम्पल के अंदर आपको देखना है कि वेदर द एग्जामिनर हैज यूज द डिस्प्लेसमेंट मेथड और द स्वैपिंग मेथड। अगर उसने डिस्प्लेसमेंट यूज किया है तो जो भी क्वेश्चन में आपको इनपुट दी जाएगी आपको उसको डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से अरेंज करना है। अगर उसने स्वैपिंग का मेथड यूज किया है तो आपको स्वैपिंग वाले मेथड से ही करना है। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या आएगा फिर, अब मुझे पता है इसके बाद मुझे 4 को सेकंड पोजीशन पे लेके आना है, तो मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा आपस में, ये दोनों वर्ड्स आपस में स्वैप हो जाएंगे। सो एग्जाम फॉर इज फॉर प्रिपेयरिंग इज राजन, ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स आपस में स्वैप हो गए, बाकी एज सच अपनी पोजीशन पे रहे। अब स्टेप 3 में क्या आएगा, मुझे पता है इसके बाद इज चाहिए, तो इज थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए, तो ये आपस में अरेंज हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। सो ये बनेगा एग्जाम फॉर इज प्रिपेयरिंग राजन। So, अब आप देखोगे कि सारे सारे जो वर्ड्स थे दे ऑलरेडी गॉट अरेंज्ड, ठीक है, EFIPR, तो जो हमें चाहिए था बन गया। अब इस केस में स्टेप 3 वुड बी द लास्ट स्टेप, इस केस में स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप। तो आप एक चीज और नोटिस कर रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने स्टेप डिस्प्लेसमेंट में बनेंगे उतने ही स्वैपिंग में बनेंगे, दे माइट बी डिफरेंट आल्सो। तो अगर एग्जामिनर ने आपको ये वाली एग्जांपल सेट करके दी है शुरू में, तो आपको इस एग्जांपल को फॉलो करके जो भी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं, जो भी सेंटेंस है, उसको रीअरेंज करना है, ठीक है। तो ये था अरेंजमेंट व्हेन सम सेंटेंस और वर्ड्स आर गिवन टू यू। अगेन अगर वर्ड्स आता है तो वर्ड में क्या होगा, यहाँ तो मैंने एक प्रॉपर इनपुट में सेंटेंस दिया, राजन इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। सो ये भी हो सकता था कि इनपुट में आपको कुछ 6 वैसे वर्ड्स दे दिए, कोई भी रैंडम 6 वर्ड्स आपको दे दिए, ठीक है, आपको उनको अरेंज करना है, वो भी पॉसिबल है, तो जिनका कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। और अगर बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स में अगेन थोड़ा इजी रहता है, नंबर्स में आइडेंटिफाई करना इजी होता है। नंबर्स में क्या होगा, अगेन अगर आपको मान लो कुछ भी नंबर दे दिए, इनपुट में आपको नंबर दे दिए 15, 31, 18, 8, 10, राइट, और 40, इस तरह से नंबर दे दिए, दिस इज द इनपुट, देन स्टेप 1, स्टेप 2। अब इसमें भी नंबर्स को अरेंज किया होगा, राइट। अगेन नंबर जब इंक्रीज अरेंज करेंगे, वो भी या तो नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे, या हो सकता है प्राइम नंबर्स पहले अरेंज किए हों, कॉम्पोजिट नंबर्स लास्ट में अरेंज किए हों, या कॉम्पोजिट नंबर्स पहले अरेंज किए हों, प्राइम नंबर्स बाद में अरेंज किए हों, कुछ भी हो सकता है। और अगेन वो आपको लास्ट स्टेप देख के समझ आ जाएगा कि क्या करा हुआ है। सो व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स, नंबर्स वाला पार्ट इजी रहता है, आपको लास्ट स्टेप देख के समझ आ जाता है कि नंबर से क्या करा हुआ है, वेदर दे आर arranged in the increasing order or they are arranged in the decreasing order, or the primes are arranged first then the composite numbers are arranged, or पहले composite किया है फिर prime किया है, ठीक है। या हो सकता है स्मॉलेस्ट नंबर पहले नंबर पे है, लार्जेस्ट एंड पे है, सेकंड स्मॉलेस्ट सेकंड पे है, सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लास्ट पे है, थर्ड स्मॉलेस्ट थर्ड नंबर पे है, थर्ड लार्जेस्ट थर्ड लास्ट प्लेस पे है। सो ये ऐसे भी चल सकता है, बट जो भी होगा वो आपको क्लियरली दिख जाएगा लास्ट स्टेप के अंदर। लेट अस टेक द एग्जांपल नाउ टू अंडरस्टैंड बेटर इट नाउ। So this is the first question, and यहाँ पे हमें इनपुट दे रखी है ट्रक्स 49, कैरी 36, मैसिव 25, लोड 16।
ठीक है, अब स्टेप्स दे रखे हैं आपको। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, मैं एक चीज और यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले ही मेंशन करना चाहूंगा कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, अगेन क्वेश्चंस दो तरह के बनते हैं इसमें भी, ठीक है। इनपुट में भी दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक वो जिसमें लास्ट स्टेप होगा, ठीक है, लास्ट स्टेप उसमें प्रेजेंट रहेगा, लास्ट स्टेप इज प्रेजेंट। एंड सेकंड टाइप होती है जिसमें लास्ट स्टेप इज एब्सेंट, ठीक है। हम दोनों तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रेजेंट होगा लास्ट स्टेप वो भी, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा वो भी, राइट। जहां पे तो लास्ट स्टेप प्रेजेंट होगा वहां पे लिखा होगा क्लियरली दैट दिस इज द लास्ट स्टेप, जो भी होगा लिखा होगा दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है, दिस इज लास्ट स्टेप ऑफ अरेंजमेंट, ऐसा कुछ लिखा होगा। लेकिन जहां पे लास्ट स्टेप एब्सेंट होगा ना, वहां पे लिखा होगा एंड सो ऑन, मतलब जो भी अरेंजमेंट बन रहा है दैट अरेंजमेंट इज कंटिन्यूड, वो बंद नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, ठीक है, दैट इज कंटिन्यूड एंड सो ऑन। हम दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ पे अब इनपुट दे दिया आपको, इनपुट वाज ट्रक 49 कैरी 36 मैसिव 25 लोड्स 16। अब इसके बाद स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 दे दिया, एंड इट इज गिवन दैट स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप। सो इसका मतलब ये है बेस्ड ऑन द पैटर्न वेयर द लास्ट स्टेप इज गिवन टू यू, ठीक है। अब दो चीजें हैं, व्हाट हैज बीन डन एंड हाउ दैट हैज बीन डन, क्या किया है और कैसे किया है, दो चीजें देखनी है आपको। इनपुट वाज ट्रक्स 49 कैरी 36 मैसिव 25 लोड 16। तो क्या किया है, अगर ये देखना है कि व्हाट हैज बीन डन, अगर ये मुझे देखना है तो मैं सिर्फ लास्ट स्टेप पे देखूंगा कि क्या करा हुआ है। तो मुझे यहां दिख रहा है कि कैरी 16 लोड 25 मैसिव 36 ट्रक्स 49। सो अगर आप ध्यान से देखो तो जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है ना। कैरी में सी आ रहा है, लोड में एल आ रहा है, एम मैसिव स्टार्ट हो रहा है एम से, और ट्रक स्टार्ट हो रहा है टी से। सो सी एल एम टी दे आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमारे पास होता है थर्ड लेटर, ये होता है 12th लेटर, ये होता है 13th लेटर, और टी होता है हमारे पास 20th लेटर, राइट। सो जो वर्ड्स हैं दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एज पर देयर फर्स्ट अल्फाबेट, राइट। और जो नंबर्स हैं वो क्या है, नंबर्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 16 25 राइट 36 एंड 49, नंबर्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एंड दे आर ऑल्टरनेट, पहले वर्ड फिर नंबर फिर वर्ड फिर नंबर, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि क्या करा हुआ है कि जो वर्ड्स हैं उनको हमने अरेंज किया हुआ है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एज पर द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द वर्ड्स, और नंबर्स को भी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे किया हुआ है, वेदर दिस इज डन बाय यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट और बाय यूजिंग द स्वैपिंग, ठीक है, वो अब हमें देखना है। वो कहां से दिखेगा, वो दिखेगा हमें स्टेप्स में। अब इनपुट में क्या था, ट्रक्स 49 कैरी 36 मैसिव 25 लोड 16। मुझे पता है मुझे वर्ड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले कैरी आएगा। तो हमने कैरी को इस पोजीशन से, जो इनपुट में इसकी पोजीशन थी दैट वाज थर्ड, हमने इसको उठा के फर्स्ट पोजीशन में लिख दिया। बाकी ट्रक्स 49 36 मैसिव 25 लोड, अब देख रहे हो ये सारे एक एक स्टेप राइट में डिस्प्लेस हो गए। सो दिस हैज बीन डन बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट। स्टेप 2 में क्या किया, 16 यहाँ पे था, तो 16 को हमने यहां से उठाया, तो 16 को यहां लगा दिया सेकंड पोजीशन पे। देन ट्रक्स 49 36 मैसिव 25 लोड, ये आगे चले गए। फिर अगला वर्ड मुझे चाहिए था लोड, तो हमने लोड को यहाँ लास्ट से उठाया और थर्ड पोजीशन पे लगा दिया। बाकी सारे एक एक स्टेप इस तरफ आ गए। फिर अगला नंबर चाहिए था 25, वो यहाँ से उठा के लोड के बाद लगा दिया, एंड बाकी ट्रक्स 49 36 मैसिव दे गॉट डिस्प्लेस्ड वन स्टेप टू द राइट। उसके बाद हमने मैसिव को उठा के यहाँ लगाया, ट्रक्स 49 36 वो इस तरफ आ गए, फिर 36 यहाँ से उठा के यहाँ लगाया, और अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, राइट। अच्छा, एक चीज और है, डिस्प्लेसमेंट और स्वैपिंग ये दोनों एक ही अरेंजमेंट के अंदर भी हो सकता है।
मतलब हो सकता है कि जो एग्जामिनर पहला स्टेप लगा रहा है, स्टेप यूज कर रहा है, स्टेप बना रहा है, फर्स्ट स्टेप जो उसने बनाया है, ही हैज अरेंज द फर्स्ट स्टेप एज पर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो सेकंड स्टेप वो यूज कर रहा है, ही इज यूजिंग दैट सेकंड स्टेप बाय यूजिंग द मेथड ऑफ स्वैपिंग। ठीक है, ये भी हो सकता है कि पहला स्टेप उसने डिस्प्लेसमेंट से करा, सेकंड स्टेप उसने स्वैपिंग से करा, थर्ड फिर डिस्प्लेसमेंट से करा, फोर्थ फिर स्वैपिंग से करा, ये भी पॉसिबल है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है अगर पहले स्टेप के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट दिख गई तो सब में डिस्प्लेसमेंट होगी। इसीलिए मैंने अगर आप देखो यहाँ पे सारे स्टेप चेक किए, मैंने फर्स्ट भी चेक किया, सेकंड भी चेक किया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैंने सारे स्टेप चेक किए। ठीक है, सिर्फ पहला स्टेप देख के आप ये नहीं बोलोगे कि ओके अगर फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट हुई है तो ये डिस्प्लेसमेंट बेस्ड है। हो सकता है एग्जामिनर ने सेकंड स्टेप में स्वैपिंग कर दी हो, ठीक है, थर्ड में डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ में फिर स्वैपिंग, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है पहले दो स्टेप में उसने डिस्प्लेसमेंट करी, अगले दो स्टेप में उसने स्वैपिंग करी, अगले स्टेप में फिर उसने डिस्प्लेसमेंट करी है, कुछ भी हो सकता है। जैसे भी किया होगा आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। इसीलिए हमने यहाँ पे सारे के सारे 6 के 6 स्टेप्स हमने यहाँ पे चेक किए, हर एक में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम भी इसी तरह से ही करेंगे। ठीक है, नाउ let's come to the questions now. अब यहाँ पे 3 questions हैं and you can see that for every question a different input is given to you. For every question a different input is given to you. ठीक है, अब हर एक क्वेश्चन के लिए डिफरेंट इनपुट भी हो सकती है, या हो सकता है एक इनपुट के ऊपर 3 क्वेश्चन बन जाए, कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में क्या, पहले क्वेश्चन में क्या दिया, थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप दिया है मुझे। सो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे इनपुट नहीं दी, मुझे थर्ड स्टेप दिया है। थर्ड स्टेप इज फॉर मटेरियल 36, टेस्ट 16, pegged and 64. This is the third step and question is asking for the fifth step. अब यहाँ पे एक और चीज, जब मुझे फोर्थ स्टेप लिखना है ना, अब मुझे पता है क्या करना है, वर्ड यहाँ पे हमने अरेंज करने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। यहाँ पे देखा जाए I4 ऑलरेडी अरेंज्ड है, I के बाद M ही आना चाहिए, बिकॉज M NOPQRST चलता है, तो P उसके बाद आता है, T उसके बाद आता है। तो पहले 3 जो एलिमेंट्स हैं इज, फोर एंड मटेरियल, वो तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। थर्ड स्टेप है तो ऑब्वियसली बात है पहले तीन अरेंजमेंट्स हो चुके होंगे। ठीक है ना, पहले स्टेप में पहला अरेंजमेंट होगा, दूसरे स्टेप में पहले 2 होंगे, तीसरे स्टेप में पहले 3 होंगे। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप है तो पहले 3 तो अरेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें पेपर में अपना टाइम सेव करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे अरेंजमेंट करनी है एज पर द फर्स्ट अल्फाबेट्स ओनली। जब मुझे पता है कि मुझे पहले अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट करनी है, देन व्हाई टू राइट डाउन ऑल द होल वर्ड्स, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो लेट अस राइट डाउन द थर्ड स्टेप वंस अगेन। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल वर्ड इज, आई एम जस्ट टेकिंग आई फ्रॉम हियर। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल वर्ड मटेरियल, हम सिर्फ एम को यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तो सिर्फ पहले लेटर के अकॉर्डिंग ही इनको अरेंज करना है, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हम इस तरह से करके करेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब फोर्थ में क्या होगा, लेटर नंबर लेटर देन नंबर। अब 4 के बाद अगला नंबर आता है 16। ठीक है, तो मतलब 16 यहां से इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये बनेगा I4M16, राइट। बाकी सारे डिस्प्लेस हो जाएंगे, 36 T P एंड 64। एंड क्वेश्चन वाज आस्किंग फॉर द फिफ्थ स्टेप। ठीक है, थर्ड दिया था, फिफ्थ पूछा हुआ है। सो फिफ्थ क्या बनेगा हमारे पास, फिफ्थ बनेगा, अब देखो I4M हो गया, 6 में हो गया, M के बाद क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो P है, अब ये 16 के बाद यहाँ पे आगे लग जाएगा। सो I4M16P 36 T एंड 64। सो दिस वुड बी द फिफ्थ स्टेप। तो अब ये इसका मतलब क्या है, इज फॉर मटेरियल 16। इज फॉर मटेरियल 16 तो सब में चल रहा है, A में, B में, C में, तीनों में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखना क्या आ रहा है, 16 के बाद क्या आ रहा है, P मतलब पैक्ड। 16 के बाद पैक्ड फर्स्ट में आ रहा है और सेकंड में आ रहा है, मतलब C ऑप्शन तो नहीं हो सकता। देन 36, अब पैक्ड के बाद 36 आ रहा है मेरे पास B ऑप्शन में, A में नहीं आ रहा, सो B विल बी द राइट आंसर।
ठीक. So this is the first question. Now let's see the next one. Second one. Second में हमें बोला गया है, हमें थर्ड स्टेप दे दिया अगेन. थर्ड स्टेप पूछा हुआ है, इनपुट दे रखी है. ठीक है, इनपुट दी हुई है एंड क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द थर्ड स्टेप. सो यहाँ पे जो इनपुट है फॉर द सेकंड क्वेश्चन, इनपुट मेरे पास है. अगेन आई विल राइट द फर्स्ट लेटर्स ओनली. ठीक है, मिनिस्टर्स में से एम लिया, 25 सॉल्व्ड, 36 देयर, 81 प्रॉब्लम्स एंड 64. ठीक है, मिनिस्टर्स 25 सॉल्व, 36 देयर, 81 प्रॉब्लम, 64. तो स्टेप 1, सबसे पहले हम वर्ड अरेंज करेंगे. तो MSTP, इनमें सबसे पहले M ही आता है. ठीक है, तो M तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. जो ऑलरेडी अरेंज्ड है उनको लिखने की जरूरत नहीं होती, ध्यान रहे. अगर हम देखें यहाँ पे जो लेटर्स आ रहे हैं, दे आर M, S, T एंड P. ठीक है, M इज 13th लेटर, S is 19th, T is 20th and P is your 16th letter. तो M तो ऑलरेडी 13 सबसे छोटा दिख रहा है हमें, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फिर हम देखेंगे नंबर के ऊपर. नंबर्स दिए हैं 25, 36, 81 एंड 64. अब 25, 36 सबसे छोटा 25 है, वो भी ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो इनको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप में जो अरेंजमेंट्स ऑलरेडी हो रखी हैं उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा रहेंगी. M25 ऐसे लिख दिया. अब M के बाद अगला जो लेटर आना चाहिए वो P आना चाहिए, तो P यहाँ पे है, इसको यहाँ से हम थर्ड पोजीशन पे लेके आते हैं. सो P थर्ड पे आ गया. ठीक है, बाकी सब डिस्प्लेस हो जाएंगे. S 36, T 81, 64. सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप. मतलब फर्स्ट स्टेप में जो ऑलरेडी चीजें अरेंज्ड हैं, जो ऑलरेडी एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, उनको हम रीअरेंज नहीं करेंगे, ये ध्यान रहे. नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2. अब स्टेप 2 में क्या होगा, M25P ये तो हो चुका है. ठीक है, अब P के बाद नंबर आएगा, नंबर कौन सा आएगा, 36. so यहाँ पे आएगा 36. 25 के बाद अगला नंबर 36 आएगा. देन S T 81, 64. so M25 P 36 S T 81, 64 ये आपका सेकंड स्टेप बनेगा. पूछा गया हमसे थर्ड स्टेप है. सो थर्ड स्टेप क्या आएगा, थर्ड स्टेप में फिर से M25 P 36 तक तो हम अरेंज कर चुके हैं. ठीक है, अब इसके बाद P के बाद अगला लेटर कौन सा आना चाहिए, अगला लेटर आना चाहिए S. सो S ऑलरेडी है यहाँ पे. ठीक है, 36 के बाद P के बाद S लेटर आना चाहिए, S ऑलरेडी है, तो ये अरेंजमेंट नहीं हुई, ये ऑलरेडी था. ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे अब. ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमारे पास, हमें पता है जब लेटर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो M P S तो ऑलरेडी अरेंज हो गए. M P एंड S 13th लेटर, 16th एंड 19th, ये तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए. ठीक है, तो इसको अब वापस नहीं लिखेंगे हम. अब अगला स्टेप देखेंगे. अब अगला स्टेप क्या आएगा, अब लेटर के बाद अगला नंबर आएगा, फिर से नंबर कौन सा आएगा, 36 के बाद 64, तो ये बनेगा 64 यहाँ पे. ठीक है, एंड T एंड 81. so this will be the third step. so third step would be ministers 25 problems 36 solved 64 there 81. so B option will be the right answer again. ठीक है जी, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया. now let's see the next one, the third one. अब थर्ड में क्या बोला है, सो आंसर फॉर द फर्स्ट वन वाज ऑप्शन बी, सेकंड इज आल्सो ऑप्शन बी. थर्ड में आपको इनपुट दिया है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट. ठीक है, कितने स्टेप चाहिए होंगे इसको अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें. सो यहाँ पे अब हमें इनपुट दे रखी है. सो इनपुट इज द, सो हमने टी रखा सिर्फ. ठीक है, 36 इशू में से आई, 49 then it is became
then 9, then serious, then 25. So this was the input. This is the input. Step number 1. पहले हमें लेटर से स्टार्ट करना है। तो सबसे छोटा लेटर कौन सा आ रहा है यहाँ पे? बी। ठीक है, अगर लिखना है अलग से लिख सकते हो आप। बी पहला सबसे पहले आएगा, ठीक है, फिर आएगा आई, फिर आएगा एस और फिर आएगा टी। तो पहले हमें बी को अरेंज करना है। तो बी पहली पोजीशन पे आएगा, बाकी सब डिस्प्लेस हो जाएंगे। बी टी 36, आई 49, बी ऑलरेडी जा चुका है, सो 9 एस एंड 25। अब अरेंज करना है नंबर को। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 9, तो सेकंड स्टेप पे नंबर अरेंज होगा। सो ये बनेगा बी 9 टी 36 आई एस एंड 25। बी 9 टी 36 आई 49 रह गया इसमें से, आई के बाद 49 है, देन एस देन 25। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमें क्या अरेंज करना है? आई को। सो बी 9 आई पहले आ जाएगा, सो टी 36 49 एस एंड 25। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आएगा हमारे पास 25। सो फोर्थ स्टेप में मेरे पास क्या बनेगा? बी 9 आई 25 देन टी 36 49 एंड एस। अब पांचवें स्टेप में क्या बनेगा? लेटर नंबर फिर लेटर हमें करना है। तो टी और एस में से एस पहले आएगा। सो बी 9 आई 25 एस 36 49 एस पहले आएगा, एस टी 36 एंड 49। अब मुझे नंबर को अरेंज करना है। तो सिक्स स्टेप में क्या बनेगा? बी 9 आई 25, ठीक है, एस अब 36 पहले आएगा, then T, then 49. Now you can see that all the letters, they are arranged in the increasing order, as well as the numbers, they are also arranged in the increasing order. So how many steps are required? A total of 6 steps are required to solve this problem or to rearrange the given input. Now with this example, I hope everything is now clear to you. Now let us see the next one. Again, so here it says again, input is she was interested in doing art film. Steps are given to you. Step 5 is the last step. Again, last step है यहाँ पे. That means this is again of the type where the last step would be the last step will be given to you. मतलब arrangement कहीं ना कहीं end कर रही है. ठीक है, अब क्या किया हो यहाँ पे? What has been done? पहले हमें ये देखना है कि करा क्या हुआ है. उसके लिए आप सीधा लास्ट स्टेप पे आओगे. लास्ट स्टेप में आर्ट वाज इन फिल्म डूइंग शी इंटरेस्टेड. अगर आप पहले लेटर्स को देखोगे, हर एक वर्ड के पहले लेटर को देखोगे, तो वो ए है, डब्ल्यू है, आई है, फिल्म का एफ, डूइंग का डी, शी का एस, इंटरेस्टेड का आई. सो यू कैन सी दैट दीज आर नॉट अरेंज्ड आइदर इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाला पहले लेटर के हिसाब से तो कुछ नहीं बन रहा. लेकिन अगर आप वर्ड के लास्ट लेटर को देखोगे, हर एक वर्ड के, सो टी मिल रहा है, आर्ट में से टी, वाज में से एस, इनका एन, फिल्म का एम, डूइंग का जी, शी का ई, लास्ट लेटर इंटरेस्टेड का डी. ना डी इज द फोर्थ लेटर, ई इज द फिफ्थ लेटर, जी इज सेवंथ, एम इज 13th, एन इज 14th, दिस इज 19th एंड दिस इज 20th. सो इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्स हैं दे आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड. तो लास्ट लेटर जो है वर्ड्स का, उसको बेस बना के हमने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है, 20, 19, 14 एंड सो ऑन. ठीक है, सो इसका मतलब हमें जब भी अरेंजमेंट करनी है, हमें भी लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है. लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग हमें इनको अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. ठीक है, सो लेट्स चेक द फर्स्ट वन. अच्छा, उससे पहले ये तो हो गया क्या किया हुआ है कि हमें पता है कि लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग हमने
वर्ड्स को अरेंज किया हुआ है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब कैसे किया हुआ है वो देखना है। अब हमें पता है आर्ट सबसे पहले आएगा। इनपुट थी शी वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग आर्ट फिल्म। आर्ट हमने यहां से उठाया और फर्स्ट स्टेप में पहली पोजीशन पे ले गए एंड यू कैन सी ऑल द अदर वर्ड्स दे आर डिस्प्लेस्ड वन स्टेप टू द राइट। फिर वाज चाहिए था तो वाज हमने यहां से उठाया, सेकंड पोजीशन पे लगाया, बाकी सब डिस्प्लेस कर दिए। फिर इन चाहिए था तो इन यहां से उठाया, थर्ड पोजीशन पे लगा दिया, बाकी डिस्प्लेस कर दिए। देन फिल्म हमने यहां से उठाया, अगले स्टेप में फोर्थ पोजीशन पे लगाया, बाकी डिस्प्लेस कर दिए। ठीक है, आफ्टर दैट डूइंग यहां से उठा के यहां लगाया और बाकी डिस्प्लेस कर दिए। दैट मींस दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग इनपुट। अगेन कितने स्टेप चाहिए हमें इस इनपुट को कंप्लीट करने के लिए। सो इनपुट हमारे पास आ रही है, इनपुट दे रखी है यहाँ पे, he is going out to search air, he is going out to search air। अगेन क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वर्ड्स के लास्ट लेटर्स के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे, जस्ट टू सेव आवर टाइम हम लोग पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम, ही इज गोइंग, यहाँ से ई को ले लेंगे, यहाँ से एस को, यहाँ से जी को, यहाँ से टी को, यहाँ से ओ एच एंड आर। दैट वुड बी इजी। देखो होगा कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ ये कि सिर्फ टाइम बचेगा आपका। ठीक है, सो रादर देन कि हम पूरा पूरा वर्ड लिखें, बेटर है कि हम सिर्फ लास्ट स्टेप को लेके चलें, लास्ट लेटर को लेके चलें। तो यहाँ पे ई है, यहाँ से एस है, यहाँ से जी आएगा, राइट। सो इनपुट में क्या दे रखा है, ई एस जी, आउट में से टी, टू में ओ, सर्च में से एच, एयर में से आर। ठीक है, तो हमें इनको अरेंज करना है, ई एस जी टी ओ एच आर, हमें इनको अरेंज करना है एज पर द इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, एज पर द लास्ट लेटर। सो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे पहले वो लेटर आएगा जो सबसे बाद में आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में। सो आर एस टी, सो पहला लेटर टी आएगा। ठीक है, सो ये बनेगा टी ई एस जी ओ एच एंड आर। सेकंड में क्या आएगा, अब टी के बाद क्या आएगा, एस टी। ठीक है, आर एस टी है ना, तो एस आएगा इसके बाद, सो टी, फिर आएगा एस, देन ई। तो हमने एस को थर्ड पोजीशन से सेकंड पे रखा, बाकी सब हमने अरेंज कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए टुवर्ड्स द राइट। थर्ड में क्या आएगा, आर एस टी होता है तो आर आएगा, आर लास्ट में है, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, राइट। सो ई जी ओ एंड एच, ये हमारा थर्ड स्टेप बन गया। फोर्थ में क्या आएगा, नो, ई एफ जी एच ओ, ओ बाद में आता है। ठीक है, तो अब पहले ओ आएगा, सो ये बनेगा टी एस आर ओ ई जी एंड एच। एंड आफ्टर दैट स्टेप नंबर 5 में क्या आएगा, टी एस आर ओ तक हो चुका था। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास ई एफ जी एच है, तो एच आएगा पहले, देन ई एंड जी। और 6 में क्या बनेगा, 6 में बन जाएगा टी एस आर ओ एच जी ई, राइट। सो ये मेरे पास कंप्लीट अरेंजमेंट हो गया। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब आउट है, ठीक है। एस का मतलब इज है, आर का मतलब एयर है, ये टू से आ रहा है, सर्च गोइंग ही। ठीक है, तो ये मेरे पास लास्ट स्टेप बनेगा, क्योंकि इसके बाद हमने सभी लेटर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया as per the English alphabetical series. And question says how many steps are required? So answer is option C. हमें यहाँ पे 6 steps चाहिए होंगे to complete this arrangement. Now, second question. Second question कह रहा है if step 2 of the input is not is the casino considering legal action, then find the input. अब ये क्वेश्चन जो होता है ना, देखो मैंने आपको शुरू में बोला था कि क्वेश्चंस इनपुट में दो तरह के आएंगे, वन वेयर द लास्ट स्टेप इज गिवन, वेयर द लास्ट स्टेप इज गिवन, ठीक है, और सेकंड होता है वेयर लास्ट स्टेप इज नॉट गिवन, लास्ट स्टेप इज एब्सेंट। तो ये कौन सा है, ये है क्वेश्चन वेयर द लास्ट स्टेप इज गिवन।
अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान रहे, जब भी आपको लास्ट स्टेप वाला क्वेश्चन दिया है ना, जहां पे आपको लास्ट स्टेप दे रखा है, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन दिया है, इन सच क्वेश्चंस यू कैन नॉट मूव बैकवर्ड्स। आप बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते कभी भी। मतलब अगर आपको स्टेप 2 दिया है, आप चाहोगे स्टेप 2 से तो स्टेप 3 निकाल सकते हो, यू माइट फाइंड अ स्टेप नंबर 3, ठीक है, ये हो जाएगा। बट इफ यू आस्क मी दैट ओके स्टेप नंबर 2 इज दिस वन, व्हिच वन विल बी द स्टेप नंबर 1, आई डू नॉट नो दैट, मुझे नहीं पता है कि स्टेप 1 क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देख के एक बार लगता है कि अगर इसको हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए तो कुछ ऐसे बन सकता है, कैसीनो इज नॉट कंसिडरिंग द लीगल एक्शन, बट मैंने आपको शुरू में बोला दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इनपुट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इनपुट एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इनपुट मीनिंगफुल सेंटेंस होना कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए हमें नहीं पता। अब देखो ना, सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मुझे यहाँ तो इनपुट दे रखी है, अगर मान लो ये इनपुट यहाँ पे मिसिंग होती, अगर ये इनपुट यहाँ पे मिसिंग होती, तो ये टी जो मैंने पहली पोजीशन पे रखा है, हाउ कैन आई से कि ये टी जो था ओरिजिनल इनपुट में ऑलरेडी पहली पोजीशन पे नहीं था, या ये सेकंड पोजीशन पे था। हो सकता है ये जो टी कहां से आ रहा था, टी आ रहा था आउट से, हो सकता है कि ओरिजिनल इनपुट में जो आउट होता वो आपका सेकंड वर्ड होता, आपने वहां से टी उठा के यहाँ लिखा। या ये भी हो सकता था कि ओरिजिनल इनपुट में आउट आपका लास्ट वर्ड होता, वो यहाँ से भी आ सकता था, ठीक है। और जो यहाँ दिया है उसमें आउट आपका फोर्थ वर्ड है, सो फोर्थ भी हो सकता था। सो यू नेवर नो कि जो ये पहला वर्ड आउट आया है ये ओरिजिनल इनपुट में कहाँ था, क्योंकि हमें पता है कि इनपुट नीड नॉट टू बी अ मीनिंगफुल सेंटेंस, वो मीनिंगफुल सेंटेंस हो ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो आउट कहीं से भी, आउट कहीं भी लिखा हो सकता था, आउट माइट बी द फर्स्ट वर्ड इन द ओरिजिनल इनपुट, आउट सेकंड वर्ड भी हो सकता था, थर्ड भी हो सकता था, कोई भी वर्ड हो सकता था ये वाला। सो जहां पे भी आपको लास्ट स्टेप दे रखा है ना, यू कैन नेवर मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आप थर्ड स्टेप पे सेकंड पे नहीं आ सकते, सेकंड से फर्स्ट पे नहीं आ सकते, फर्स्ट से इनपुट पे नहीं आ सकते। सो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको हमेशा पिछला स्टेप या ओरिजिनल इनपुट पूछी गई हो, आंसर स्टेट भी हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन द लास्ट स्टेप इज देयर, व्हेन द लास्ट स्टेप इज गिवन टू यू, ठीक है। जहां पे क्वेश्चन होंगे जहां लास्ट स्टेप इज एब्सेंट, ठीक है, अगर बोला जाता है कि लास्ट, ऐसे क्वेश्चन जहां पे लास्ट स्टेप एब्सेंट है, लास्ट स्टेप इज एब्सेंट, ठीक है, वहां पे आप लोग इनपुट निकाल सकते हो, यहाँ पे इनपुट कैन बी फाइंड, ठीक है, यहाँ पे इनपुट निकाल सकते हो, ये हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे इनपुट मिल सकती है, ठीक है, यहाँ पे आप पिछले स्टेप पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे लास्ट स्टेप एब्सेंट है तो यहाँ लिखा होगा एंड सोन, एंड सोन मतलब ये चलता रहेगा। अगर ये नहीं भी लिखा है तब भी लास्ट स्टेप इज नॉट गिवन, ये सेंटेंस लिखा नहीं होगा दैट दिस इज द लास्ट स्टेप, ठीक है, ये लाइन नहीं लिखी होगी। अगर ये लाइन नहीं लिखी मतलब लास्ट स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जहां पे लास्ट स्टेप एब्सेंट होता है, यू कैन फाइंड द प्रीवियस स्टेप्स आल्सो, लेकिन जहां पे भी लास्ट स्टेप गिवन है, आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर आपको पिछला स्टेप ढूंढना है तो यू कैन फाइंड द नेक्स्ट वन, बट यू कैन नॉट फाइंड द प्रीवियस वन। अगर आप पिछले क्वेश्चन पे जाते हो तो यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ हमें इस क्वेश्चन के अंदर थर्ड स्टेप दिया था, हमने फिफ्थ ढूंढा था, वो पॉसिबल है। बट अगर थर्ड देके इनपुट पूछा होता, आंसर वुड हैव बीन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड स्टेट में, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर लास्ट स्टेप वाला क्वेश्चन है जहां लास्ट स्टेप दे रखा है, आपको कोई भी बीच का स्टेप देके पिछला स्टेप पूछा है या इनपुट पूछी है, आंसर स्टेट में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड हो जाएगा। Now this one is the next. No, it says a famous museum issues entry passes to all the visitors for security reasons. Visitors are allowed in batches after 1 hour. In a day, there are 6 batches. A code is printed on entry pass, which keeps on changing for every batch. Following is an illustration of the passcodes issued for each batch. So batch 1 का code ये था, ठीक है, passcode batch 2 का ये था, batch 3 का ये था. Now you can see that यहाँ पे नहीं लिखा हुआ that this is the last step. नहीं लिखा ना, सो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ये किस तरह का है जिसमें लास्ट स्टेप हमें नहीं पता है या लास्ट स्टेप हमें नहीं दिया हुआ। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें अब लास्ट स्टेप इन्वॉल्व नहीं है, सो इट इज अ टाइप ऑफ द क्वेश्चन वेयर द अरेंजमेंट विल कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, यहाँ पे कोई लास्ट स्टेप नहीं आएगा। इनको
इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का डिफरेंट मेथड होता है। इनफैक्ट ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, बट व्हेन यू गो टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अगर आपने एक बार पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया ना इन क्वेश्चंस के अंदर, द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बैच 1, बैच 2, बैच 3 की। आपने कुछ नहीं करना। बैच 1 बेसिकली देखो, यहाँ पे इनपुट नहीं दिया, हो सकता है इनपुट देके बैच 1 दिया होता, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे सीधा बैच 1 से स्टार्ट किया है, तो जहां से स्टार्ट किया करने के लिए बोला गया है वहीं से करेंगे। बैच 1 में क्या बोला है, मामा वाज caught in the power crisis situation। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल, जस्ट ध्यान रहे, दिस इज एन इलस्ट्रेशन। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने वर्ड्स को ना नंबर दे देना है। मामा वाज caught in the power crisis situation, सो इसको आपने नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, 4, 5, 6, 7 एंड 8। आपने पहली जो भी, अगर पहले इनपुट दे रखी है तो इनपुट में जो भी दे रखा है उसमें आप नंबर दे दोगे, या फिर इस तरह से जैसे इनपुट यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली बैच 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी पहला सेंटेंस आपके पास है उसमें आपने वर्ड्स को नंबरिंग कर देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ नहीं सोचना है इसके बाद। ठीक है, सो बैच 1 में क्या आ गया आपके पास, बैच 1 में यहाँ लिख लेते हैं, एक बार से सिर्फ नंबर लिखेंगे। बैच 1 में नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये ऑर्डर है हमारे पास। बैच 2 में क्या आता है, जो आपने नंबर ऊपर दे दिए ना, वही नंबर आप यहाँ पे यूज करोगे। बैच 2 में सिचुएशन है, पहले सिचुएशन कहाँ पे आ रहा है, सिचुएशन का नंबर क्या था, ओरिजिनल। आपको ओरिजिनल नंबर्स के हिसाब से लिखना है, ये ध्यान रहे। जो आपने ओरिजिनल नंबरिंग दी है ना, आपको उसी नंबरिंग के हिसाब से चलना है। सिचुएशन में आपने क्या दिया, नंबर 8, तो ये आपका 8 हो गया। मामा 1 हो गया, वाज क्या था 2, क्राइसिस क्या है 7, पावर क्या था 6, कॉट इज 3, इन इज 4, दो इज 5। ठीक है, तो आपका जो बैच 2 का कोड है वो बन गया आपके पास, लिख लो इसको भी 812, so it is 812 7 6 3 4 5, 812 7 6 3 4 5। अब देखते हैं बैच 3 में क्या दे रखा है, दो। अच्छा, ओरिजिनल में हमें हमेशा ओरिजिनल नंबरिंग के हिसाब से चलना है, दो इज द नंबर 5। ये ध्यान रहे, हमें ओरिजिनल से चलना है, बैच 2 से नहीं चलना। जो ओरिजिनल आपने सीक्वेंस में नंबरिंग किया, आपको उसी सीक्वेंस को पकड़ना है। दो इज नंबर 5, सिचुएशन इज नंबर 8, मामा इज नंबर 1, in is number 4, caught is number 3, was is number 2, crisis is number 7, power is number 6। तो ये बैच 3 बन गया आपके पास 5 8 1 4 3 2 7 6। so 5 8 1 4 3 2 7 6। बैच 4, बैच 4 में, अब बैच 4 में यहां नहीं दिया हुआ, बैच 4 हम यहां से निकालेंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि बैच 1 से बैच 2 कैसे बना था, बैच 2 से बैच 3 कैसे बना था। देयर वुड बी अ पैटर्न। अब देखो हो क्या रहा है, बैच 1 से जब बैच 2 बनाया तो जो ये 8 था, ये 8 लास्ट से पहली पोजीशन पे आ गया। ठीक है, फिर 1 एंड 2 जो अगले दो नंबर थे वो ऐसा रहे। फिर ये 7th और 6th नंबर अगली पोजीशन पे आ गए, और फिर 3 4 ये आगे चले गए, और 5 लास्ट में चला गया। मतलब क्या हुआ, जो लास्ट वाला है ये पहली पोजीशन पे आएगा। ऐसे यहाँ देखो, लास्ट वाला पहली पोजीशन पे आ गया, 1 एंड 2 जो पहली दो पोजीशन पे थे वो अगली दो पोजीशन पे आ गए। यहाँ पहली दो पोजीशन पे क्या है, 8 एंड 1 वो अगली दो पोजीशन पे आ गए। फिर यहाँ पे 7 6 कहां से आया था, ये वाले 7 एंड 6। ठीक है, मतलब सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट। अब सेकंड स्टेप में सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट क्या है, 4 एंड 3, तो 4 एंड 3 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 3 एंड 4, मतलब ये जो थर्ड 4 नंबर था वो अगले दो नंबर बन गए, जो यहाँ पे कौन से हैं, 2 एंड 7, और जो पांचवें नंबर का नंबर है वो लास्ट में लग जाएगा। इस तरह से आपको अगला स्टेप भी लिखना पड़ेगा, 4th 5th 6th, ये चलता रहेगा। क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी आपको यही पैटर्न फॉलो करते जाना है, तो अब इसमें कुछ भी आप कह लो कि एंड नहीं होगा, कहीं पे भी कुछ भी एंड नहीं होगा, ये ऐसे चलता जाएगा। अगर 4th स्टेप लिखना, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे 8 पहले नंबर पे आया था, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 6, तो 6 पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर क्या हुआ था, 1 एंड 2 ऐसे लिखे थे, मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर ऐसे आगे आ गया। थर्ड स्टेप में पहला दूसरा नंबर कौन सा है, 5 एंड 8, तो ये 5 एंड 8 आगे आ जाएगा।
फिर 7 6 कौन से थे, सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट। यहाँ पे सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट कौन से हैं, 7 एंड 2, तो ये 7 एंड 2 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा 3 4, मतलब थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ कौन सा है, 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 5 कहाँ था, 5 वाज इन द फर्स्ट फिफ्थ पोजीशन, तो बैच 3 में फिफ्थ नंबर कौन सा है, 3, सो 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक बार और देखते हैं 5वें स्टेप में, बैच 5 में। आपको आप इन दोनों को कंपेयर करते जाओ आपस में, क्या हो रहा है। 8th नंबर पहली पोजीशन पे आ गया, मतलब लास्ट नंबर पहली पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट कौन सा है, 3, सो 3 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 एंड 2 दोनों आएंगे आगे, सो 1 एंड 2 मतलब पहले दो नंबर्स, यहाँ पहले दो नंबर कौन से हैं, 6 एंड 5, तो 6 एंड 5 यहाँ आ जाएंगे। फिर उसके बाद कौन से आए थे, 7 6, मतलब थर्ड लास्ट एंड सेकंड लास्ट। यहाँ पे थर्ड लास्ट एंड सॉरी सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट दे आर 4 एंड 1, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे कौन से आएंगे अगले दो, है ना, 3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ नंबर वाले, 8 एंड 7, 8 एंड 7 यहाँ आ जाएगा, और पांचवा नंबर यहाँ आ जाएगा। मतलब बेसिकली 3 4 5 तीनों इकट्ठे आ रहे हैं, 8 7 एंड 2। ऐसे 6 में भी होगा, ये नंबर आगे आ जाएगा। फिर पहले दो नंबर आएंगे 3 एंड 6, फिर सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट, तो 7 एंड 8, ठीक है। बाकी क्या बचा, 5 4 1, तो वो यहाँ आ जाएगा 5 4 1, ठीक है। अब ये चलता जाएगा ऐसे। अब मुझसे पूछो इसका 7 स्टेप निकालना है, वो निकाल लेंगे, 8 निकालना है, वो भी लिख देंगे। सो बेसिकली लास्ट नंबर पहली पोजीशन पे, उसके बाद पहले दो नंबर सेकंड थर्ड पोजीशन पे, फिर सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट अगली दो पोजीशन पे, फिर जो बचे हुए 3 नंबर्स थे वो सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, 3 4 5 बचे थे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। एक बार आपने ये अरेंजमेंट बना दिया ना, अब क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इसके बाद कुछ नहीं बचा, अब बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ करना। आपको सिर्फ इन इन नंबर्स को देखना है, इन पैटर्न्स को देखना है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पास कोड फॉर द थर्ड बैच इज दिस वन, व्हाट इज द पास कोड फॉर द सिक्स्थ बैच। अब कुछ नहीं करोगे, आपने क्या करना है, थर्ड बैच में ऑर्डर क्या था, 5 8 1 4 3 2 7 6, ठीक है ना। मतलब ओरिजिनल इनपुट का पांचवा वर्ड पहली पोजीशन पे है, ओरिजिनल इनपुट का या ओरिजिनल बैच वन का 8th जो वर्ड है वो सेकंड पोजीशन पे है, ओरिजिनल बैच वन का फर्स्ट वर्ड थर्ड पोजीशन पे है, एंड सो ऑन। आपने जो भी नंबर यहाँ पे बैच 3 के जो नंबर्स है ना, वो यहाँ दे दो इसको, 5 8 1 4, ठीक है, 3 2 7 एंड 6, ठीक है। बैच 3 का कोड आपको दे रखा है, तो बैच 3 में ये ऑर्डर बनता है 5 8 1 4 3 2 7 6, तो मैंने इनको 5 8 1 4 3 2 7 6 नंबर दे दिए। अब कह रहा है 6 बैच में क्या बनेगा, 6 बैच का कोड क्या था जी बताओ, 6 बैच में क्या चल रहा है, 6 में चल रहा है 2 3 6 7 8 5 4 एंड 1। अच्छा इससे कंपेयर करें, 2 में क्या आता है, वाइडर, 2 में वाइडर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो गलत हो गए, ये दोनों तो गलत हो गए। 3 में क्या आ रहा है, अच्छा अगर रियर टाइड्स दोनों में सेम चल रहा है, इनको देखने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली देखते हैं अगला फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या है, 7th, क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्या बन रहा है, थर्ड में क्या आ रहा है, थर्ड इज रियर्स, 6th इज टाइड्स, ठीक है। तो ये तो दोनों में चल रहा है, रियर्स टाइड्स दोनों में चल रहा है, बी और सी में। आगे एक्सपीरियंस आएगा या फ्रंट्स आएगा, ये देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें 7th पे देना है। 7th पे क्या आ रहा है, 7th इज एक्सपीरियंस, 7th इज एक्सपीरियंस, मतलब ये बनेगा वाइडर रियर्स टाइड्स एक्सपीरियंस, राइट। सो वाइडर रियर टाइड्स फ्रंट्स नहीं बनेगा, एक्सपीरियंस बनेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक बार आपने ये वाला अरेंजमेंट बना दिया, उसके बाद क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट नाउ, सेकंड वन। सेकंड में कह रहा है दिस इज द पास कोड ऑफ द फिफ्थ बैच। सो फिफ्थ बैच में क्या था पैटर्न, 3 6 5 4 1 8 7 2। सो ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 2 है, ठीक है ना। ये फिफ्थ बैच का कोड है, पास कोड है, उसमें नंबरिंग क्या थी, 3 6 5 4 1 8 7 2। आपसे पूछा गया फिफ्थ बैच में का कोड क्या होगा,
सॉरी, ये वाला किसका कोड होगा? दिस इज अ कोड फॉर द 5th बैच, बट आपको ये बताना है कि ये किसका कोड होगा। अब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, जू आ रहा है 5वें नंबर पे, सो जू इज एट नंबर 5। अब नंबर 5 पे देखा जाए तो ये जो बैच 3 है वो स्टार्ट होता है नंबर 5 से, सिर्फ बैच 3 जो है वो नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया? बैच 3 जो है वो नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपने इनको नंबर दे दिया, इनको नंबर कैसे दिया हमने? 5th बैच के अकॉर्डिंग। 5th बैच में पैटर्न क्या था? 36541 872। सो हमने जो भी यहाँ पे इनपुट थी, जो भी पासकोड था, उसको हमने नंबर दे दिया 36541 872, जो कि 5वें बैच का कोड था। उसके बाद जब हम इसको ढूंढ रहे हैं कि ये किसका पासकोड होगा, तो पहला वर्ड आ रहा है जू में जू का यहाँ पे नंबर कौन सा है? 5। इसको हमने 5 दिया। वी का नंबर कौन सा है? 8। अगला वैसे 8 आएगा, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे तो 5 से स्टार्ट होने वाला बैच कौन सा है? 3rd है। आगे भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ तक नहीं होगा, आगे नहीं होगा, आगे भी हो सकता है, बट ऑप्शन में देखा जाए तो 2 4 1 3 दे रखा है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। राइट, नेक्स्ट, रानी विजिटेड इन द म्यूजियम, विजिटेड द म्यूजियम इन द 4th बैच। अब 4th बैच में इसको जो कोड दिया गया वो ये दिया गया। उसका पैटर्न क्या था? वो था 6587। सो ये था 6 5 8 7 2 1 4 एंड 3, ठीक है ना। 4th बैच का जो ऑर्डर बन रहा है वो 6 5 8 7 2 1 4 3 बन रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है 2nd बैच का कोड क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन वो ये जो जैसा पिछला था, यहाँ आपको 4th बैच दिया है, आपसे 2nd बैच पूछा गया है, मतलब आपको बैकवर्ड जाना है, और यहाँ पे बैकवर्ड जाना पॉसिबल है। जहाँ पे लास्ट स्टेप नहीं दिया हुआ वहां पे यू कैन गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन आल्सो, यहाँ पे बैकवर्ड जाना पॉसिबल है। तो 2nd बैच का कोड पूछा गया आपसे, तो 2nd बैच में कोड क्या था? 2nd बैच में जो कोड था दैट वाज 8। 8 पे क्या आ रहा है बताओ? 8 पे रश आ रहा है, रश सब में आ रहा है, ठीक है। तो अगर 8 बैच का हम यहाँ पे लिख लें, लेट से मैं कलर चेंज करके यहाँ लिखता हूँ। 2nd बैच में आ रहा है 8 1, now this is the last question, 8 1 2 7 6 3 4 5। so 8 में क्या आ रहा है हमारे पास? 8 पे रश है, 1 पे क्या है? डू, 2 पे नॉट, ठीक है। सो रश डू नॉट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले 3 वर्ड से समझ आ गया कि आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप इट इज क्लियर। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल ऐसी ही। दिस इज एक्चुअल IFT क्वेश्चन आल्सो। सो अगेन यहाँ पे हमें इनपुट दे दी, ठीक है, यहाँ पे इनपुट दे दिया, और बैच 1 बैच 2 बैच 3 बैच 4। फर्स्ट बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 9:30 पे, एंड ईच बैच इज ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन। देयर इज अ रेस्ट पीरियड ऑफ 1 आवर आफ्टर द वर्क फॉर द 4th बैच इज ओवर, ठीक है। तो 4th बैच के बाद हमारे पास एक बैच की ब्रेक है यहाँ पे। इनपुट यहाँ पे हमारे पास आ रही है, माई बैग कैरीज नो मोर देन 10 बुक्स। सो अगेन आप यहाँ पे इनपुट दे दिया, हम इनपुट पे यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है जी। तो इनपुट हमारे पास ये आ गई। सो इनपुट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ बैच 1, बैच 1 में क्या आ रहा है देखते हैं। मोर, मोर कहाँ पे है? नंबर 5 पे है। माई नंबर 1 पे है। यही एक चीज है जहां पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखने में और ये अरेंजमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने जैसे शुरू में बोला था कि क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर रहते हैं ये वाले क्वेश्चंस। सो मोर वाज इन द 5th पोजीशन, माई इज इन द 1st पोजीशन, देन इन द 6th पोजीशन, बैग इज इन द 2nd पोजीशन, 10 इज इन द 7th पोजीशन एंड सो ऑन। इनको लिख लो 5 1 6 2 7 3 8 4। मेरे ख्याल से आपको पैटर्न तो समझ आ गया है, ठीक है। तो हम फटाफट से लिख लेते हैं इसको। ये 2nd है, ये 7th है, ये 6th है, ये 3rd है,
this is 1, this is 8, this is 5, no is 4. So second batch बनेगा आपका 27631854. ठीक है, ये सेकंड स्टेप बैच बन गया. थर्ड बैच में क्या आएगा? माई चल रहा है आपके पास 1 फर्स्ट पोजीशन पे है. थर्ड बैच में माई फर्स्ट पे है, बैग सेकंड पे है, बुक्स 8th, 10 7, मोर 5, देन 6, नो 4 and carries 3. So 1 to 8 7 5 1 to 8 7 5 6 4 3. ठीक है. फोर्थ बैच में आ रहा 10 मतलब 7th, मोर मतलब 5, बुक्स हमारे पास आ रहा है 8 पे, देन आ रहा है 6 पे, बैग इज 2, नो इज 4, माई इज एट 1 एंड कैरीज इज नंबर 3 और लिखा है एंड सो ऑन. दैट मींस अगेन यहाँ पे हमारे पास कोई भी लास्ट स्टेप नहीं बनेगा. ठीक है, ये भी क्वेश्चन है जहां पे लास्ट स्टेप नहीं बन रहा. सो 7 5 8 6 2 4 1 3. सो हमारे पास बैच नंबर 4 बन गया. अब क्वेश्चन कह रहा है बैच 4 के बाद एक ब्रेक है. ठीक है, 1 आवर की. फर्स्ट बैच की टाइमिंग है 9:30 पे, तो ये 9:30 वाला बैच हो गया आपके पास. 9:30 to 10:30, ये 10:30 to 11:30 है, ये 11:30 to 1:30 12:30, ये 12:30 to 1:30. ठीक है. अब 12:30 to 1:30 के बाद 1:30 to 2:30 ब्रेक आएगी, फिर अगला बैच 2:30 पे चलेगा जो 5वां बैच होगा. और हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें 2:30 वाले बैच की अरेंजमेंट पूछी हुई है, तो हमें इसको बना लेते हैं एक बार. अब इसको बनाना कैसे है यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले से. इनपुट से चेक करो क्या हो रहा है. इनपुट में क्या हो रहा है, फर्स्ट पहले क्या हो रहा है, देखो पहले नंबर 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो लास्ट के 4 नंबर्स है ना ये वाले, ये ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे पहले 4 के बीच में फिक्स हो रहे हैं. जैसे 5 पहले पे आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 8 आ गया और फिर 4 आ गया. ठीक है, तो ये नंबर पहली पोजीशन पे आ गया, मतलब पहले लास्ट के 4 नंबर जो हैं पहले 4 नंबर के साथ ऑल्टरनेटिवली फिक्स हो रहे हैं. 5 पहली पोजीशन पे आ गया, फिर 1 आ गया, देन 6, देन 2, देन 7, देन 4, देन 3, देन 8, देन 4. ठीक है, तो ये पहला बैच का कोड बन गया. बट सेकंड में ऐसा नहीं हो रहा. ठीक है, सेकंड में ऐसा नहीं हो रहा, सेकंड में कुछ और हो रहा है. अब जो भी हो रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट हम उस पर जाएंगे नहीं इतना डिटेल में. जहां लिखने की जरूरत पड़ेगी हम जो भी यहाँ पे किया होगा वैसे ही कर लेंगे. बेसिकली ये 2 आगे जा रहा है. इनफैक्ट 2 और 7 जो फर्स्ट बैच में 4th और 5th पोजीशन के नंबर्स हैं, वो पहले 2 नंबर बन गए, थर्ड नंबर ऐसा रह गया. ठीक है, फिर 6th नंबर 4th बन गया, सेकंड आपका 5th बन गया, फिर 7th आपका 6th बन गया, फर्स्ट आपका 7th बन गया. ठीक है, तो मतलब इसको छोड़ दो कि ये याद रखना मुश्किल है, बट करेंगे क्या हम लोग, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो जैसे यहाँ पे किया वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे. थर्ड में फिर वही किया जो पहले में किया था. जो लास्ट के 4 नंबर है 1854, वो फिर से यहाँ पे पहले 4 के साथ अरेंज हो रहे हैं ऑल्टरनेटिवली. सो 1 पहले आ गया, फिर यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 8 आया यहाँ पे, यहाँ से 7 आ गया अगला नंबर, देन 5 आया यहाँ पे, देन 6 आया यहाँ पे. ठीक है, देन 4 आया यहाँ पे और फिर 3 यहाँ आ गया. अब थर्ड से जो फोर्थ वाला लिखा हुआ है ना, ये फिर से इसी पैटर्न पे लिखा है जिस पैटर्न में ये लिखा हुआ है फर्स्ट से सेकंड. तो ऑलरेडी आपको थर्ड से फोर्थ लिख के दिया है. अब चेक करना चाहो तो कर सकते हो. थोड़ा ध्यान से सुनना जरा. जो फर्स्ट में 4th और 5th नंबर थे वो पहले 2 पोजीशन पे आ गए. यहाँ पे भी देखोगे आप तो जो भी यहाँ पे 4th और 5th पोजीशन पे नंबर थे 7 और 5, वो पहले 2 पे आ गए. ठीक है, थर्ड नंबर वैसे रह गया, यहाँ भी थर्ड नंबर वैसे रह गया आपके पास. ये 1 कहाँ से आया था, ये 1 जो था पिछले स्टेप में सेकंड नंबर था, तो ये 6 कहाँ से आ रहा है अगला. सॉरी, ये 3 है ना, 2 7 6 3 आ रहा है.
सॉरी ये थ्री कहां से आ रहा है? ये थ्री पिछले स्टेप में, सेकंड स्टेप में जो थ्री था, ये पिछले स्टेप में 6 नंबर था, है ना? तो ये नंबर यहां से यहां आ रहा है 6 नंबर, यहाँ पे वही हो रहा है, जो 6 नंबर है वो यहाँ पे आ रहा है। ये 1 कहां से आया था? ये 1 जो था पिछले स्टेप में सेकंड नंबर था, यहाँ पे पिछले स्टेप में सेकंड नंबर कौन सा है? 2, वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 8 कहां से आया था? 8 वाज द सेकंड लास्ट नंबर ऑफ द प्रीवियस स्टेप, तो यहाँ पे जो 4 है वो पिछले स्टेप का सेकंड लास्ट नंबर है। अच्छा, ये 5 कहां से आया था? दिस वाज द फर्स्ट नंबर ऑफ द प्रीवियस स्टेप, तो ये 1 कहां से आ रहा है? दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द प्रीवियस स्टेप। ये जो 4 है ये कहां से आया था? ये ऊपर वाला नंबर था। ठीक है, और यहाँ पे 3 भी ऊपर वाला ही नंबर है, ये 3 भी ऊपर वाला ही नंबर है आपके पास। राइट जी, तो ये जो पहले 2 स्टेप में किया है वही यहाँ थर्ड और फोर्थ में किया हुआ है। अब हमें देखना है कि अगर 5वां स्टेप बनाना तो कैसे बनेगा। सो 5वें स्टेप के लिए हम क्या करना है? फिर से जो लास्ट के 4 नंबर होंगे, ये नंबर्स इनके साथ ऑल्टरनेटिवली अरेंज होंगे, तो 2 पहले आएगा, फिर 7 आ जाएगा, ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर 4, फिर सेकंड नंबर यहाँ से 5, फिर यहाँ से 1, यहाँ से 8, यहाँ से 3 और यहाँ से 6। ठीक है, तो ये इसमें एक्चुअली में 2 अरेंजमेंट चल रही हैं। इनपुट से पहला स्टेप कैसे बन रहा है? लास्ट के 4 नंबर्स पहले 4 के साथ ऑल्टरनेटिवली एडजस्ट हो रहे हैं। 5 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 7 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। और सेकंड स्टेप कैसे बन रहा है वो डिफरेंट है। जो फोर्थ फिफ्थ नंबर है वो यहाँ पे आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे, वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। अगर देखोगे तो फोर्थ फिफ्थ नंबर जो है 7 5 वो यहाँ पे आ गए फर्स्ट पोजीशन पे। थर्ड नंबर ऐसा रह गया, यहाँ भी थर्ड नंबर वैसे रह गया आपके पास। ये 3 कहां से आ रहा था? ये 3 था 6th नंबर, ये 6 कहां से आ रहा है? ये आ रहा है पिछले 6th नंबर से। ठीक है, 1 कहां से आ रहा था? 1 वाज द सेकंड नंबर ऑफ द प्रीवियस स्टेप, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2, 2 कहां से आ रहा है? सेकंड नंबर ऑफ द प्रीवियस स्टेप। ये 8 कहां से आ रहा है? 8 वाज द सेकंड लास्ट नंबर ऑफ द प्रीवियस स्टेप, यहाँ पे 4 क्या है? सेकंड लास्ट नंबर ऑफ द प्रीवियस स्टेप। यहाँ 5 जो आ रहा है वो पिछले स्टेप का फर्स्ट नंबर था, यहाँ जो 1 आ रहा है वो पिछले स्टेप का फर्स्ट नंबर है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरह से बन रहा है। अब हमें 6th बैच की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी हम देखते हैं क्वेश्चन में। अगर पड़ेगी तो हम 6 स्टेप लिखेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हम इसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मेरे ख्याल से ये सब समझ आ गया कि कैसे ये बन रहा है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पास कोड फॉर द सेकंड बैच। आपको सेकंड बैच का पास कोड दे रखा है, तो सेकंड बैच में पैटर्न क्या है? 27631854। ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आ गया 1, ये 8, ये 5 और ये 4। मतलब जो भी आपकी ओरिजिनल इनपुट होगी, उस ओरिजिनल इनपुट को जो आपने रीअरेंज किया होगा, तो सेकंड बैच में आपके पास इफ विंटर कम्स ऐसे बना है। तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया ये वाला पार्ट, ऑर्डरिंग की, तो ऑर्डरिंग बार बार करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि सेकंड बैच में जो भी ओरिजिनल इनपुट होगी उसके नंबर्स, उसकी जो वर्ड्स हैं वो इस ऑर्डर में अरेंज किए जाएंगे। जो भी ओरिजिनल इनपुट रहेगी उसके वर्ड्स इसी ऑर्डर में अरेंज किए जाएंगे। सो दिस इज द सेकंड बैच। क्वेश्चन कह रहा है 230 वाले बैच का ऑर्डर क्या होगा? अब 230 वाले बैच में देखा जाए तो पैटर्न क्या है? 27451836। ठीक है, 2 पे क्या आ रहा है? 2 पे आ रहा है इफ। 7 पे क्या आ रहा है? विंटर। 4 पे क्या आ रहा है? 4 इज बिहाइंड। सो इफ विंटर बिहाइंड, तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, 5वें नंबर पे क्या है? फार, वो भी चल रहा है। इफ विंटर बिहाइंड फॉर, इफ विंटर बिहाइंड फॉर, ये ए और डी दोनों में चल रहा है। फिर देखना पड़ेगा 1, 1 पे क्या आ रहा है? स्प्रिंग। सो फॉर के बाद क्या आएगा? स्प्रिंग आएगा। ठीक है, और स्प्रिंग कहां पे आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सेकंड में कह रहा है राहुल वाज बिगिन टू वर्क एट द इन द बैच एट 10:30। ठीक है, तो 10:30 वाला बैच कौन सा है? सेकंड बैच है। तो उसका पासपोर्ट था आई लाइक टी एंड बिस्किट बट नॉट टुगेदर। सो ये इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड बैच का जो ऑर्डर है वो 27631854 होगा। तो बेसिकली ओरिजिनल इनपुट का ये सेकंड वर्ड है,
ओरिजिनल इनपुट का ये 7th वर्ड है, ओरिजिनल इनपुट का ये 6th वर्ड है, ये 3rd है, ये 1st है, ठीक है, ये 8th है, ये 5 है और ये 4 है। बट क्वेश्चन कह रहा है ही केम लेट एंड ज्वाइन द नेक्स्ट बैच, सो व्हाट इज द न्यू पासकोड। तो मतलब ये सेकंड में आना था उसको, बट वो आया नहीं, अब वो आ रहा थर्ड में। तो थर्ड में पासकोड क्या है? थर्ड का पासकोड है 12875643। ठीक है, थर्ड का 12875643 है। 1 पे क्या था? बिस्किट। 1 इज बिस्किट। 2 पे क्या है? 2 है आई। 8 पे क्या है? बट। 7 पे क्या है? लाइक। सो बिस्किट, आई, बट, लाइक। तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गए। सी और डी में डी में देखोगे तो बिस्किट आई बट टी है, बट हमें क्या चाहिए? बिस्किट आई बट लाइक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट, एक बार आपने ये अरेंजमेंट बना दिया, इसमें टाइम लगता है, उसके बाद क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है। अब क्वेश्चन क्या है? ऑन अ पर्टिकुलर डे द पासकोड फॉर बैच इमीडिएटली बिफोर द रेस्ट आर। इमीडिएटली बिफोर रेस्ट आर मतलब 4th बैच। ठीक है, 4th बैच का जो कोड था वो ये था, पासकोड ये था, मतलब पैटर्न क्या है वर्ड्स का? 7। तो ओरिजिनल इनपुट का 7th वर्ड पहले नंबर पे है, फिर ओरिजिनल इनपुट का 5वां वर्ड आएगा, ओरिजिनल इनपुट का 8th वर्ड आएगा, फिर 6th आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4, फिर 1 एंड 3। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द इनपुट। ऑब्वियसली बात है इनपुट कहां से स्टार्ट होगी? अब इनपुट मतलब इनपुट में तो हम क्या लेके चल रहे थे? इनपुट वाज 1 2 3 4 5 6। तो जैसे आपको मैंने पहले कहा था कि इन क्वेश्चन के अंदर आप इनपुट भी निकाल सकते हो। राइट, सो इनपुट में क्या आएगा? एनी। 1 इज एनी, 2 इज हैव, ठीक है, 3 इज वूल, 4 इज यू, 5 इज बा, 6 इज शीप। मेरे ख्याल से काफी है। एनी हैव वूल, एनी हैव वूल यू, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, एनी हैव वूल यू बा शीप, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? एनी हैव वूल यू बा ब्लैक, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट, सो इन क्वेश्चन के अंदर अगर आपने ये जो ओरिजिनल पैटर्न है ये वाला बना लिया आपने, ठीक है, और इसमें बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती। आपको सिर्फ करना क्या है? इनपुट, जो भी इनपुट है उसके जो वर्ड्स हैं उनको आपने नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 जो भी दे रहे, जितने भी वर्ड्स होंगे वो दे देंगे आप। उसके बाद बैच 1 बैच जो भी लिखा है आगे, बैच 1 बैच 2, उसमें भी आप आपको ओरिजिनल इनपुट में जो नंबरिंग दी है उसी को फॉलो करते हुए बाकी जो बैचेस दे रखे हैं या जो भी स्टेप दे रखे हैं उनके अंदर जो वर्ड दे रखे हैं उनको नंबर करना है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इन क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज ध्यान रखना, जैसे ओरिजिनल वर्ड में, ओरिजिनल इनपुट में आपके पास 8 वर्ड्स थे ना, तो आपके पास जितने मर्जी क्वेश्चंस आएंगे आपको 8 वर्ड वाले ही क्वेश्चंस आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं 7 या कहीं 9 वाला आ गया, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। तो जितने वर्ड्स ओरिजिनल इनपुट में होंगे उतने ही वर्ड्स हमेशा आपको क्वेश्चंस के अंदर दिए जाएंगे। ठीक है, and this was the actual IFT question, and now you can see कि you can understand कि ये कैसे हम इनको टैकल कर सकते हैं। अगर पेपर में हम इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें इनको देखना पड़ेगा। ठीक है, I hope that whatever is discussed in this session is clear to all of you. Thank you.